برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت 10 روپے سستا، قیمت 524 روپے فی کلو ہو گئی، انڈوں کی فی درجن قیمت 263 روپے مقرر۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، کیا تفصیلات ہیں ریٹس کی؟ آج بالکل برائلر کی قیمتوں میں جو ہے وہ آج کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر کی کھپت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، جس کے باعث برائلر گوشت جو ہے وہ 10 روپے فی کلو تک سستا کیا گیا ہے۔ 534 سے قیمت جو ہے وہ کم کر کے 524 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 7 روپے فی کلو تک جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 341، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 349 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ 600 روپے فی کلو تک، جبکہ بون لیس جو ہے وہ 680 سے 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جبکہ انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج انڈوں کی قیمتوں میں دوسرے روز بھی اضافہ کیا گیا، اور اضافے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سپلائی جو ہے وہ متاثر کی گئی ہے، کیونکہ کھپت کے مقابلے میں جو سپلائی ہے وہ کم ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈوں کی قیمتوں میں 2 روپے فی درجن تک کا اضافہ کیا گیا۔ 261 سے قیمت بڑھا کر فارمی انڈوں کی آج جو ہے 263 روپے فی درجن مقرر کی گئی، اور انڈوں کی پیٹی جو ہے 7,770 روپے کی کر دی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 22 سے 23 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور فی درجن قیمت جو ہے وہ شہریوں سے 270 روپے فی درجن تک وصول کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل عدم استحکام کا شکار جو ہے وہ سامنا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ مہنگائی سے بیزار ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ صرف سرکاری قیمتیں جاری کی جاتی ہیں، لیکن ان قیمتوں کو کم کرنے کے لیے عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر اس تفصیل کا۔ پنجاب سے چینی کی اسمگلنگ کا معاملہ، چینی مہنگی اور افغانستان اسمگل کرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ چینی مافیا میں کون کون ملوث ہے، جانچ پڑتال ہوگی۔ حسن رضا کی رپورٹ ہے۔ سستی چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، چینی مہنگی اور افغانستان اسمگل کرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ چینی کن راستوں سے سرحد پار گئی، کین کمشنر نے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک پنجاب سے 4 لاکھ ٹن چینی افغانستان اسمگل کی جا چکی ہے۔ 130 روپے والی چینی افغانستان میں 200 روپے فی کلو فروخت ہوئی۔ چینی کی فی کلو قیمت بڑھنے سے ملز مالکان کو 115 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ اس سے قبل لاکھوں ٹن چاول اور آٹا بھی افغانستان اسمگل کیا گیا ہے۔ اسمگلنگ بڑھنے سے ملک میں چینی کی قیمت بڑھی۔ کینٹ کمشنر نے تمام شوگر مل سے بھی ڈیٹا منگوا لیا ہے۔ سیکرٹری خوراک پنجاب محمد زمان وٹو کہتے ہیں کہ اب تک 40,000 بوری سے زائد چینی ذخیرہ اندوزوں سے برآمد کی جا چکی ہے۔ چینی کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر نظام وضع کر رہے ہیں۔ چینی کی نقل و حمل کے لیے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کا پرمٹ لازم ہوگا۔ مہنگائی کا توڑ، یوٹیلیٹی سٹور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ یوٹیلیٹی سٹور پر سستا آٹا غائب ہے، دیگر ضروری اشیاء بھی محدود ہو گئی ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل 89 روپے میں ملنے والی چینی اب 91 روپے فی کلو بکنے لگی ہے۔ سستی خریداری کے لیے آئے شہری مایوس لوٹنے لگے۔ حکومتی سبسڈی بھی مہنگائی کی نذر ہو گئی۔ عوامی ریلیف کے لیے بنے یوٹیلیٹی سٹورز بھی ریلیف نہ مہیا کر سکے۔ سستے سٹورز پر ضروری اشیاء خورنوش کی تعداد محدود رہ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء کے نرخوں اور عام مارکیٹ میں خاص فرق نہ رہا۔ رمضان المبارک سے قبل 89 روپے ملنے والی چینی اب 91 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ 578 روپے ملنے والے کوکنگ آئل کی اب قیمت 626 روپے ہو گئی۔ گھی 401 سے 406 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں حکومت کوئی وعدہ وفا نہیں کر سکی، نہ ہی مہنگائی کم ہوئی، نہ ہی سستے رمضان بازار لگے۔ جس طرح پہلے رمضان بازار لگتے تھے پورے پنجاب میں چھوڑ کے پورے پاکستان میں، اس طرح اس دفعہ گورنمنٹ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ حکومت کے جو دعوے ہیں وہ تو جب آئے تھے تو یہ انہوں نے وعدہ تو یہی کیا تھا کہ ہم یوں بڑا اچھا کر دیں گے، لیکن حقیقت میں اب رمضان ہے، ابھی تک جو انہوں نے ایک جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پریکٹیکلی عملی طور پہ گراؤنڈ روڈ پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ شہری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے نرخوں پر نظر ثانی کی جائے تاکہ عوام کو سستی اشیاء دستیاب ہوں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ایل پی جی مافیا کی منمانیاں، عوامی رکشہ یونین اور گھریلو صارفین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ضلع انتظامیہ نے قیمتیں کنٹرول نہ کی تو ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ سامع سعید کی رپورٹ دیکھیں۔
अवामी रिक्शा यूनियन बढ़ती हुई महंगाई और LPG माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अवामी रिक्शा यूनियन और घरेलू सार्फिन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि ईद सर पर है, लेकिन महंगाई की वजह से रिक्शे खड़े ही रहते हैं और काम है नहीं। मुनाफाखोर माफिया ने LPG की कीमत 300 रुपए फी किलो तक कर दी है। अवामी रिक्शा यूनियन के जो कारकुनान है, रिक्शा ड्राइवर है, आज इसराफा एहतजाज इसलिए हुए हैं बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। LPG जो है सरकारी रेट ओगरा का जो है ये 210 रुपए है, अब ब्लैक मार्केटिंग में 280, 290, 300 रुपए तक बेची जा रही है। दिन दिहाड़ा आ रहा, महंगाई इतनी है, हमें समझ नहीं आ रहा बच्चों को ईद के कपड़े कैसे लेके देंगे। गैस इतनी महंगी है, गैस डलवा लेते हैं, सवारी किराया खर्च इतनी नहीं है, काम निकल आए रिक्शे का, हमारा रिक्शा उधर ही खड़ा हो जाता है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद खौरी ने कहा कि माफिया ने खुद साख्ता महंगाई करके लूट मार मचा रखी है। 210 रुपए वाली LPG आज 300 रुपए में बिक रही है। आटा नाकस 180 रुपए में बिक रहा है। ट्रकों में दे रहे हैं फ्री आटा, यह जलालत है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन का मजीद कहना था कि 24 घंटों में ज़रा इंतजामिया ने कीमतें कंट्रोल ना की तो DC ऑफिस के सामने धरना देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में वफाकी काबीना का इजलास। पंजाब में होने वाले इंतखाबात पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने या ना करने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट में ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर हुआ। अताउल्लाह तारक, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। काबीना के बेशतर अरकान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जारी एलामिया के मुताबिक 6 अप्रैल को कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद पर तफसीली मुशावरत की गई। वजारत खजाना को हदायत की गई कि पार्लिमान से रहनुमाई हासिल करने के लिए तरीकाकार और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक समरी तैयार करके काबीना इजलास में पेश की जाए। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना 14 मई को पंजाब में होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने या ना करने का फैसला ना कर सकी। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों में से किस पर अमल करें। काबीना इजलास तजब्जुब का शिकार। काबीना के बाज़ अरकान को मशवरा था कि आधे फंड्स जारी कर दिए जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली ना हो। सोमवार के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात बिल पर मुशावरत की गई। इजलास में मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर जोर दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि फैसले 2 आए हैं, एक 4 जजेस का फैसला है, एक 3 जजेस का। हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। फैसले 2 है ना, एक 4 मेंबर का है, एक 3 मेंबर का है। कौन सा फैसला है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कौन सा है? ये तो मैं खुद बतौर वकील भी समझने से कासिर हूँ। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इंतखाबात, हम समझते हैं कि इंतखाबात सारे मुल्क में एक ही वक्त में होने चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मजीद कहना था, हम कोई काम गैर आईनी नहीं करेंगे। कैमरामैन राना उमैर के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद और हिना परवेज़ भट्ट ने गुलशन रावी में यूथ कैंप का इफ्तिताह कर दिया। राना मशहूद अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की मेंबर साजी मुहिम जारी। गुलशन रावी में यूथ कैंप की इफ्तिताही तकरीब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद और हिना परवेज भट्ट की खसूसी शिरकत। राना मशहूद अहमद का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। तुर्किया और सऊदी अरब के दौरे के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। मुल्क में पार्लियामेंट सुप्रीम है। मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए। सऊदी अरब के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक इंतहाई कामयाब दौरा होने जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ सऊदी अरब नहीं, जिसके अंदर टर्की, चाइना, ईरान, UAE, कतर, मैं किस किस मुल्क का नाम लूं, उनकी प्लेजेस आएंगी। पाकिस्तान अपने पैरों पे फिर दोबारा इन तमाम साजिशों के बावजूद खड़ा होगा और नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान की आवाम आवाज देगी वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून यूथ की मेंबर साजी के लिए 4 रोज में 40,000 से जायद रजिस्ट्रेशन का टारगेट मुकम्मल करेंगे। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका ने नहीं की, जनरल रिटायर बाजवा ने एक्सटेंशन हासिल करने और शहबाज शरीफ को लाने के लिए साजिश की। मेरे साथियों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे दौर में महंगाई आलमी मार्केट में तेल महंगा होने के बायस हुई। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाकर पार्लियामेंट को तबाह कर दिया गया। लियाकत अली की रिपोर्ट है। वीडियो लिंक
खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका नहीं इधर से ही हुई। एक किरदार जो मास्टरमाइंड था उसकी आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। ये मेरी जगह शहबाज शरीफ को लाना चाहते थे। एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई किधर किधर धोखे हुए हमारे से। एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज इधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। इमरान खान ने हुकूमत की एक साला कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी कर दिया। कहा कि एक साल पहले पाकिस्तान कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है। 2018 में हुकूमत संभाली तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। हमें 2 साल कोरोना से निमटने में लग गए। शुक्र है इनको तब हुकूमत नहीं मिली, वरना आज मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका होता। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंतशार के अंदर हम मुलव्वस हों? क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसले इलेक्शन में, वो इंतशार क्यों चाहेगी? लेकिन हर जगह हमारे ऊपर उन्होंने हमें कोशिश की कि किसी तरह हम रिएक्ट करें, हमारे ऊपर टेयर गैसिंग जो भी करें ताकि ये कह सकेंगे तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारे दौर में महंगाई की असल वजह आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का बढ़ना था। हमारे दौर में महंगाई 12% थी, अब 35% से ऊपर चली गई है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सदर मुमलिकत को PTI का ताना देने वाले शहबाज शरीफ खुद एक मफरूर मुजरिम से हिदायत ले रहे हैं। सदर अलवी का बिल पर दस्तखत से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब हुक्म जारी किया तो हुकूमत सह नहीं पाएगी। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक रुकन पंजाब असम्बली फारूक अमानुल्लाह दरेशक और अली अमानुल्लाह दरेशक की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया तो PDM वाले उनके साथ खड़े थे और नाम चूमते थे। चीफ जस्टिस ने अब आइन के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन का ऐलान किया तो सब मुखालफत पर उतर आए हैं। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए जाती मुलाजिमीन को आगे लगा रखा है। पंजाब के इलेक्शन की तारीख देने से नून लीग के पेट में तकलीफ क्यों उठ रही है? चौधरी परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि नाअहल हुक्मरानों की गलतियों का खुमियाजा पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ रहा है। PDM सियासत को जाती दुश्मनी का रंग ना दे और मुल्क की सलामती को दाव पर न लगाए। वजीर खजाना और दाखिला का बयान के 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सकते, खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट इजलास बुलाए या काबीना मीटिंग करे, इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करना ही पड़ेंगे। सदर ने अदलिया के खिलाफ गैर आइनी बिल वापस भिजवा कर अपना आइनी फर्ज पूरा कर दिया। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मौजूदा मुल्की सियासी हालात का वाहिद हल बाहमी मुज़ाकरात हैं। एक या दो सूबों में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखें। मंसूरा में तकमीले दौरा तफसीर कुरानुल करीम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्की हालात का वाहिद हल बाहमी मुज़ाकरात हैं। 22 साल बाद मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान में अमन आया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल कैद के बाद भी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। IMF और वर्ल्ड बैंक किसी के दोस्त नहीं हैं। आओ मिलकर डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर मुज़ाकरात और डायलॉग नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूं फिर डायलॉग करना है, फिर नाकामी हो तो फिर डायलॉग करना है। अगर अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान ने 20 साल लड़ने के बाद भी मुज़ाकरात किए, नेल्सन मंडेला और डेल्सन डिक्लार्क ने 27 साल लड़ने के बाद मुज़ाकरात किए। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि मुल्क में बदअमनी, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बात करें। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलने के मुमकिन खदशात बरकरार हैं। लाहौर में 3 केसेस सामने आए हैं। पंजाब में 22 मरीज़ कोरोना में मुब्तला। गुज़श्ता एक माह में पंजाब में 7 जबकि लाहौर में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में कोरोना फैलने की मस्बत शरह 9% तक पहुँच गई है। पंजाब में इस वक्त मजमूई तौर पर 1.9% मस्बत शरह है। शहर के सरकारी हस्पतालों में इस वक्त कोरोना वायरस का कोई संजीदा मरीज़ ज़ेर इलाज नहीं है। तिबी माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया।
मार्केट में अदरक 750, लहसुन 450, प्याज 110, टमाटर 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे हैं, जबकि सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये फ़ी दर्जन बिकने लगा है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो सब्जियों और फलों की सरकारी नरखनामे जारी किए गए, मार्केट में आज भी इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। सरकारी रेजिस्टों में कीमतें जो हैं सब्जियों और फलों की कुछ और हैं, जबकि शहरियों से जो सब्जी और फल फरोश हैं वो कुछ और कीमतें वसूल कर रहे हैं। आज मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें प्याज की कीमत 80 रुपये, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी प्याज जो है 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर भी 80 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 80 के बरस टमाटर की फरोख्त भी 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। लहसुन जो है 350 के बरस 450, अदरक 640 के बरस 750 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लीमू जो है वो 420 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन देसी लीमू मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्मी 58 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी जो है वो 85 के बरस 110 रुपये, बैगन 50 के बरस 70, जबकि करेले 90 के बरस 110 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी 188 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 230 रुपये फ़ी किलो तक भिंडी की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 70 के बरस 100 रुपये फ़ी किलो तक, अरबी 150 के बरस 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि मटर 170 रुपये मुकर्रर किए गए सरकारी रेंज में, लेकिन मटर की फरोख्त जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। फलों के हवाले से बात की जाए तो शहरी जो है वो फलों की कीमतें सुनकर परेशान है, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे उसमें सेब काला कोल्हू 320 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 165 के 220 के बरस जो है 400 रुपये, जबकि दर्जा दोम का केला 165 के बरस 250 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज जो है 70 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि खजूरी रानी 580 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि अनार बनाना जो है वो 900 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद जो है वो 180 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इस पर क्या कार्रवाई उन्होंने की अभी तक? आज बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से बात की जाए तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ शहर के मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में ग्राम फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं, जिसमें मुकदमात का इंदराज करते हैं और साथ ही साथ जो जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन इन जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज के बावजूद शहर की सब्ज मंडियों और तमाम मार्केटों में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद जो है वो ताहाल यकीनी नहीं बनाया जा सका। और इस हवाले से शहरियों का भी ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं ये सिर्फ कागजी हद तक जो है महदूद है, क्योंकि जो अमली इक़दाम हैं वो मार्केट में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और शहरियों को जो है वो सही मानों में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रोजाना सुबह सवेरे इंतजामिया की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं और इन नरखनामों के मुताबिक जो है सब्जियाँ, फल और पोल्ट्री मसनूआत का मिलना शहरियों के लिए जो है वो जरूरी है, लेकिन शहरियों को जो है वो। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि अगर अवाम ने शिकायत करनी हो इन नरखनामों के हवाले से तो उसका क्या तरीकाकार बताया गया है? बिल्कुल, अवाम में अगर जो ग्राम फरोशों के हवाले से शिकायत करनी है तो इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कीमत ऐप बनाई गई है और इस कीमत ऐप पर जो है वो शिकायत की जाती है, जिसमें मुकम्मल डाटा जो है वो दिया जाता है और इसके बाद जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतल्लिका जिम्मेदारान जो है वो शिकायत के अजाले के लिए जो है वो शिकायत कुनिंदा से भी रब्ता करते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो जो मार्केट की सूरत हाल है या जो मंडियों की, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़े और आपको बताएं, मीठी ईद की तैयारियों पर महंगाई के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद शॉपिंग के लिए जहां मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों का रुख किया, वहीं महंगाई का शिकवा करते भी नजर आए हैं। महंगाई के असरात ईद शॉपिंग पर भी नजर आने लगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों का रुख किया। इचरा बाजार में खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए पहुंची। जगह जगह खूबसूरत मलबूसात, जूतों और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए। खवातीन और छोटी बच्चियां भी जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स पर मेहंदी लगवाती नजर आईं। मर्द हजरात का नई शलवार कमीज, जूतों और चश्मों की दुकानों पर रश लगा रहा। खरीदारों का कहना था कि मीठी ईद की तैयारियां कर रहे हैं, मगर महंगाई बहुत बढ़ गई है। लिबर्टी मार्केट में भी मामूल के मुताबिक शहरियों का रश रहा। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से सफेद पोश तबके के लिए शॉपिंग करना नामुमकिन होता जा रहा है। कोई चीज़ ही नहीं मिलती, मतलब पहले आपको 2000 की कोई अच्छी जूती, बच्चों की हर चीज़ मिल जाती थी, अब मिलता ही नहीं।
इतनी महंगाई हो गई है, दूसरी शॉप्स भी, इवन लिबर्टी भी बहुत महंगा हो गया। महंगाई ने अनारकली बाजार की रौनकें छीन ली। शहर की सबसे अहम तरीन मार्केट में गाहक ना होने के बराबर। दुकानदार भी परेशान दिखाई देने लगे। कहते हैं सस्ती चीजों की खरीदो फरोख्त नामुमकिन हो चुकी है। चीजें तो बहुत ही महंगी हैं, कस्टमर की खरीद से बाहर होती है, रेंज से बाहर होती हैं। तो 4 चीजें लेने आता है वो एक लेके चला जाता, आगे से कस्टमर आगे नहीं है, महंगाई अरूज पे है, कोई लेगा क्या और देगा क्या हमें। घर की जरूरत यानी पूरी होती है, इतनी की महंगाई कर दी उन्होंने। बाजार में बंदा है क्या चीज़ लेने, क्या चीज़ है, एक चीज़ लेने आते हैं दूसरी चीज़ के पैसे नहीं बचते, इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में ईद शॉपिंग के लिए आए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात उठाए जाएं ताकि मुतवस्सित तबका भी ईद की खुशियाँ मना सके। छोटी ईद पर बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद नए कड़कड़ाते नोट भी हैं। बैंकों के साथ साथ ओपन मार्केट में नए नोटों की खरीदारी की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। शाहराहों पर नए नोट इजाफी रकम पर फरोख्त हो रहे हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखें। ईद उल फितर के दरअसल कई रंग हैं। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी के साथ साथ नए करारे कड़कड़ाते नोट हर किसी के लिए बाइसे कशिश होते हैं। बच्चों की ईद तो नए नोटों के बगैर बनती ही नहीं, मगर नए करेंसी नोटों का हसूल एक मुश्किल मरहला है। बैंकों की जानिब से ताहाल वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। अलबत्ता ओपन मार्केट और स्टेट बैंक के कर्बो जवार में इजाफी रकम के साथ नए नोटों की फरोख्त जारी है। 10 और 20 रुपए के नोटों की गड्डी 400 रुपए, 50 और 100 रुपए की नई गड्डी 500 रुपए की इजाफी रकम से फरोख्त हो रही है। अवाम नए नोटों को ईद के लिए लाजमी लवाजमात का हिस्सा मानते हैं। देखिए ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ईद खुशी का नाम है और बच्चे ये छोटे नोट लेके खुश हो जाते हैं। गवर्नमेंट अगर महंगाई तो शायद उसके कंट्रोल में नहीं रह गई, लेकिन क्या ये छोटी खुशियाँ भी आसानी से तकसीम नहीं कर सकती। मार्केट जराये के मुताबिक ईद करीब आने पर नए नोट मजीद महंगे होंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। अब आपको बताएं कि सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से बारास्ता वाघा बॉर्डर 2800 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन राना शाहिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पहली बार पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री इंतहाई पुरजोश नजर आए। भारतीय मेहमान 10 रोज़ तक क़याम करेंगे। सिख बरादरी की खुशियों का त्यौहार बैसाखी मेला 2800 सिख यात्री बारास्ता वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंचे। सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद और प्रबंधक कमेटी के सदर अमीर सिंह ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए गए और गुलदस्ते पेश किए गए। सिखों के झत्ता लीडर अमरजीत सिंह का कहना था कि पाकिस्तान आकर खुशी मिलती है। ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जब चाहें गुरु के दर्शन कर सके। पाकिस्तान की धरती ते जदों ही हाजिर होए हैं सानू अपने वर्गा प्यार इत्थे बहुत ही सत्कार मिलता वा। हर वारी मैं चौथी बार इत्थे आया ते बहुत ही ज़्यादा ये सारे भरा जिहड़े ने बहुत सत्कार करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद का कहना था कि बैसाखी के त्यौहार का मकसद भाईचारे और अमन को फरोग देना है। सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और इनको इस पाक धरती के ऊपर जो कि ये गुरुओं की धरती है इसके ऊपर इनका स्वागत भी करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ और इनके लिए हम सब पूरे पाकिस्तानी जो है दुआगो हैं। पाकिस्तान पहली दफा आने वाली फैमिलीज बड़ी पुरजोश नजर आई। मतलब पहली बार इंडिया तो पाकिस्तान आया एंड लाइक इंडिया तमिलनाडु चेन्नई तो हम और पाकिस्तान आके बहुत खुशी हुई। गुरुआं दी धरती है, इत्थे रूहानीयत है। हुण असीं इस वारी विसाखी दे त्यौहार ते आए हैं। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਇਤਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंचा साहब में होगी। भारतीय मेहमान 18 अप्रैल को बारास्ता वाघा बॉर्डर वापस जाएंगे। अब कुछ बात करें ईस्टर के हवाले से तो ईस्टर मसीही बरादरी का बड़ा त्यौहार है। शहर के गिरजाघरों में इबादत और दुआई तकरीबात का एहतमाम किया गया। सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम भी किए गए। निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर अजफर अली नासिर कहते हैं मजहबी हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है।
ایسٹر تہوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار، شہر بھر کے گرجا گھروں میں عبادت اور دعائیں تقریب کا اہتمام، مسیحی برادری کے مردوں، خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی، مذہبی گیت گائے اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ تقریبات کے دوران ایسٹر تہوار کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ مسیحی برادری نے کہا کہ ایسٹر پیار، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ آج سب کے لیے بہت ہی خاص ڈے ہوتا ہے، سارے مل جل کے رہتے ہیں، سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہیں، ڈنرز ہو رہے ہوتے ہیں اور خدا کے گھر میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مارننگ سے لے کے ایوننگ تک ہمارا یہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں، اس میں مذہبی رواداری کو فروغ دینا چاہیے اور سب سے پہلے ہمیں وہ دن نہیں بھولنا چاہیے جو اس قابل نہیں کہ ایسٹر کو سیلیبریٹ کر سکے، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نگران وزیر اوقاف مذہبی امور پنجاب اظفر علی ناصر نے کیتھیڈرل چرچ مال روڈ کی دعائیں تقریب میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا پیغام دینے آیا ہوں، ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عصر حاضر میں جو دہشت گردی اور یہ جو تشدد ہے اور جو انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو مشترکہ طور پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور انسان دوستی جو ہے اس کی خوبصورت جو فضا ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ گرجا گھروں میں آنے والے افراد کو امن کے پیغام کے طور پر پھول بھی پیش کیے گئے۔ لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کا ایسٹر پر مسیحی برادری کے لیے تحفہ، مسیحی برادری کے لیے چڑیا گھر میں انٹری فری کر دی گئی۔ ایسٹر کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں چڑیا گھر کا رخ کیا ہے۔ ایسٹر پر مسیحی برادری کا سیر و تفریح کا پلان، مسیحی برادری بڑی تعداد میں چڑیا گھر پہنچ گئی۔ بچوں نے اپنے پسندیدہ جانور دیکھے، کسی نے شیر دیکھا تو کوئی ریچھ کی چہل قدمی سے محظوظ ہوا۔ بچوں نے آئس کریم بھی کھائی۔ چڑیا گھر انتظامیہ نے بھی مسیحی برادری کو ایسٹر کا تحفہ فری انٹری کی صورت میں دیا۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ بچے پورا سال ایسٹر کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ بھرپور طریقے سے خوشیاں منا سکیں۔ جو کرسچن ہیں ان کے لیے فری ٹکٹ کا انتظام کیا ہے تاکہ لوگ اور بچے آ کے یہاں پر جو ہے سیر و تفریح کر سکیں، مختلف جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ یہاں پہ ہم آئے ہیں بچوں کو تفریح کے لیے اور فری ٹکٹ ہمیں مہیا کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر ہر کسی کے لیے سیر و تفریح کا مرکز ہے، بچے تو بچے بڑے بھی لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین سلمان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ گلبرگ میں نمائش کا آرٹ گیلری میں لکھا ہوا ہے کہ عنوان سے نمائش کا اہتمام، 10 مصوروں کے فن پارے نمائش کی زینت بنے۔ مصوروں نے جدید اسلامی آرٹ میں نیا رجحان متعارف کروایا ہے۔ اویس محمود کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قرآنی آیات، احادیث اور اسلامی تحریروں کو کینوس پر اس خوبصورتی کے ساتھ اتارا گیا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ گلبرگ 2 میں نمائش کا آرٹ گیلری میں لکھا ہوا ہے کہ عنوان سے نمائش سجائی گئی، جس میں 10 نوجوان مصوروں کے فن پارے رکھے گئے جو کسی شاہکار سے کم نہیں۔ ان فن پاروں کو دیکھتے ہی انسان اس میں کھو سا جاتا ہے۔ مصوروں کا کہنا تھا کہ قرآنی آیات، احادیث کو مختلف رنگوں سے لکھا ہے۔ 10 آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنا کام ڈسپلے کیا ہے، اس کے علاوہ اس میں اولڈ ماسٹرز کا کام بھی شامل ہے اور ان استادوں کا کام، اور اس کے علاوہ اولڈ مینیوسکرپٹس ہیں، کچھ قرآنی نسخے ہیں۔ شہریوں نے اس نمائش کو خوب سراہا اور کہا کہ نئے مصوروں کے لیے یہ گیلری اچھا موقع ہے۔ خوبصورت پینٹنگ دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ایگزیبیشن ہے بیکاز ہمیں یہاں پہ دونوں طرح کا کام نظر آتا ہے، جو کنٹمپریری آرٹسٹ نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیکشن سے، پرائیویٹ کلیکشن سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ بہت اچھی ایڈیشن ہے لاہور کے لیے، بہت اچھی ایک اور گیلری ہمارے پاس آ گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح آرٹسٹ کی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کام بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے روز بچے، بڑے سبھی نمائش دیکھنے کے لیے پہنچے۔ نمائش 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ درختوں کو کاٹنے سے بچانے کے لیے اکبر چوک منصوبے کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کے ڈیزائن سے انڈر پاس ختم کر دیا۔ نئے ڈیزائن کے مطابق جناح ہسپتال سے پیکو روڈ جانے والی ٹریفک کو ایلیویٹڈ ٹریک ملے گا۔ زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھیں۔ ایل ڈی اے کا اکبر چوک کے مقام پر ری ماڈلنگ کا منصوبہ، درختوں کو کاٹنے سے بچانے کے لیے ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا۔ لاہور نیوز نے اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا نیا مجوزہ ڈیزائن حاصل کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اکبر چوک منصوبے میں انڈر پاس کی تعمیر سے درختوں کی کٹائی ہونا تھی۔ ایل ڈی اے نے منصوبے کے ڈیزائن سے انڈر پاس ہی ختم کر دیا۔ نئے ڈیزائن کے مطابق جناح ہسپتال سے پیکو روڈ جانے والی ٹریفک کو ایلیویٹڈ ٹریک ملے گا۔ اکبر چوک پر فلائی اوور کی تعمیر سے مولانا شوکت علی روڈ کو سگنل فری بنایا جائے گا۔ پی ایچ اے نے بہار شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ باغ جناح میں 40 نایاب درخت لگا دیے گئے۔
बहार शजरकारी मुहिम के तहत 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। DGPHA कहते हैं तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम से मुतालिक लेक्चर्स दिए जाएंगे। शजरकारी हम सब की जिम्मेदारी। बहार शजरकारी मुहिम के तहत स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने बाग़े जिन्ना पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के तहत पार्क में नायाब और फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि बहार शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 6 लाख दरख्त और पौधे लगाएंगे। PHA आइंदा चंद रोज तक शहरियों में मुफ्त पौधों की तकसीम का अमल भी शुरू कर रहा है। बहार शजरकारी मुहिम में हदफ पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। एक ट्री प्लांटेशन जो हम खुद अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में करते हैं तो उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी बेहतर है। एक जो हम जनरली आप पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि वो पौधे प्रोवाइड करते हैं, इस साल हमारा जो टारगेट है वो 6 लाख के करीब है। तो इंशाल्लाह हम ये 6 लाख का टारगेट जो है कि वो मीट करेंगे। हमारा जो है कि वो काम शुरू हो चुका है। बाकी जो पब्लिक को हमने प्लांट्स प्रोवाइड करने हैं वो भी मंडे से जो है मुख्तलिफ चौक से प्रोवाइड करना शुरू कर दें। DGPHA ने मजीद बताया कि शजरकारी मुहिम में लगने वाले पौधों से मुतालिक मैकेनिज्म बना रहे हैं। हर डायरेक्टर की जानिब से जितने पौधे लगाए जाएंगे उनकी नशोनुमा से मुतालिक बाज पुर्स भी की जाएगी। कैमरामैन उमर फजल के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।